Welcome to Wheeler. This is session number 10 of C++. In the session number 10 we are going to discuss about functions, default value in argument, void functions, call by value, and reference, passing reference to function, returning reference from function. Firstly we discuss about the function. What is the basic of the function? Function is a self-contained program segment that carries out some specific well-defined task. ओके मीन्स क्या करता है, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा बेसिकली क्या होता है कि बिल फंक्शन होता है, बिल प्रोग्राम होता है। मीन्स ये हमारा स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई भी कोड को हम राइट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन। ओके एवरी प्रोग्राम कंटेन वन और मोर फंक्शन विच मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम द मेन फंक्शन। जो भी हमारा प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में हमारे क्या करते हैं कि मेन फंक्शन को हम मस्ट होता है कि कॉल करें। नाउ द टाइप ऑफ द फंक्शन, ओके देयर आर द सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन by using the no parameter pass, no return value, parameter pass but no return value, parameter pass and the return value. Okay, basically the three types of the function. Structure of any function. Function के structure जब हम बात करते हैं तो basically the three parts are basic main. First one is the declaration part, means that part is called the function prototype. Second one is the calling part, means calling function, and third one is the called function, that is the defined function, means definition part of the function. ओके तीन तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। पहला हमारा कॉलिंग होता है, प्रोटोटाइप होता है, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट आर द आर्गुमेंट लिस्ट प्रोवाइडेड टू द फंक्शन। ओके सेकंड वन इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। जब हम कॉलिंग कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि कॉलिंग फंक्शन नेम एंड द फंक्शन नेम के साथ क्या करते हैं कि हम एज द आर्गूमेंट लिस्ट, वी डजंट प्रोवाइड द रिटर्न टाइप बट यू मस्ट प्रोवाइड द आर्गूमेंट लिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन एंड द कॉल्ड फंक्शन मीन्स द डिफिनेशन व्हाट द फंक्शन डज, एग्जैक्टली व्हाट द फंक्शन डज इज डिफाइंड इनटू द डिफाइंड फंक्शन, मीन्स फंक्शन डिफिनेशन के अंदर क्या करते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। ओके नाउ सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन इज दैट first one is the data type return as the return type of the function, name just return the name of the function, what is the name of the function, and the data type parameter 1 data type parameter 2 means just we provide the parameter data type किस टाइप का आपका argument list है and the name of the argument list. okay we can provide up to n number तक आप parameter list को provide कर सकते हैं but you must provide only one return type of the function. okay just see the example here, the int multiply by 4, this is the name of the function, int is the return type of the function and int x is the argument of the function which is the integer type. okay next in the multiply, int multi and multi is equal to x multiply 4, okay means multiplied by 4 and the return mult. okay इसके थ्रू क्या होगा, हमारे पास जो भी डेटा होगा वो डेटा हमारा क्या करेगा, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर दो। ना फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करने के लिए मैंने डिफाइन किया डेटा टाइप, नेम एंड टाइप 1 टाइप 2 एंड अप टू टाइप n. ओके जस्ट सी द एग्जांपल सैंपल int and int here just it treat as the कि the function name sample is written as an integer value and takes is a 2 argument as the integer type. ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा और इसके साथ साथ ये 2 आर्गूमेंट इंटीजर टाइप को क्या करेगा, गेट करेगा, जिसके थ्रू क्या करेगा हमारी वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। ओके और int सैंपल, int a, int b, वाइड डेमो वाइड। ओके int a क्या किया, हमारे पास 2 वेरिएबल प्रोवाइड किया मैंने int सैंपल में and the variable a and variable b, it is optional, if you want to provide then you must provide, otherwise you can ignore it. okay now void demo means the return type of the function is the void, means no return type, and the argument list is also void. You can also ignore the void. okay if you do not provide the any type, it must be as a void type. Here void indicate neither return value nor caller than any argument. Now default value in argument. In many cases function have argument that are used so infrequently that the default value would suffice. okay मीन्स क्या होता है, जो है हमारे फंक्शन की डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, हमारे पास ये फंक्शन का आर्गूमेंट हम बार बार इसको यूज़ करेंगे, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारी क्या होती है, हमेशा यूज होती है। उस पर्टिकुलर वैल्यू क्या करते हैं कि दिस कॉल्ड एज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू आर्गूमेंट की हमारे पास जो वैल्यू ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। टू एड्रेस दिस द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट फैसिलिटी allows for specifying only those argument to the function that are meaningful in a given call.
ओके। मीन्स इस कंडीशन को क्या करते हैं, हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन की सिचुएशन को हैंडल करते हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं कि ताकि हमारी कोई वैल्यू, कोई भी डेटा इजीली एक्सेसिबल हो जाए। ओके। टू इलिस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर द एग्जांपल प्रोटोटाइप फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। ओके, प्रिंट कैरेक्टर, ओके, पॉइंटर, प्रिंट द स्ट्रिंग and return type of print is the int. Now void function. Void means the function will not return any value by its name. Okay, मीन्स कह रहे हैं हम जब कोई void फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये फंक्शन हमारा कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता, प्रोग्राम में कोई भी आर्गूमेंट रिटर्न नहीं कर, यूजिंग द स्पेस void max int x int y and int z. ओके, तो मैक्स इज एक्स, जो भी हमारे पास वैल्यू, उस वैल्यू को हम ट्रीट करें, लेकिन इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू हमारे रिटर्न नहीं करेगा। इफ़ y इज ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स इज इक्वल टू y, इफ z इज ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स इज इक्वल टू z। ओके, यहाँ पर क्या है, मैक्स इज इक्वल टू मैक्स, लेकिन हम जब मैक्स को कॉल करेंगे, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन मैक्स कॉल होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैंने क्या किया, कोई भी वैल्यू हमने रिटर्न नहीं किया, मीन्स द फंक्शन इज वाइड रिटर्न टाइप। ओके, नाउ दिस मीन्स यू कैंट यूज वेरिएबल पास्ड बाय वैल्यू टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट। मीन्स क्या करें, हमारे पास जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे वैल्यू, आर्गूमेंट की वैल्यू हमारे फंक्शन से पास नहीं होगी। ओके, पासिंग आर्गूमेंट बाय रेफरेंस मीन्स बेसिकली टू पास द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल टू द function. This enable you to change the value of the variable since you have access to the zone of memory where that value is kept. Okay, when the function ends, the address is still valid and so are the operation made on the value of the argument passed. Okay, मीन्स जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं, जो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर आर्गूमेंट के ड्यूरेशन के दौरान क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू पास हुई, एड्रेस पास हुआ, वो हम फंक्शन में चेंज करते हैं। फंक्शन में चेंज करने के बाद जैसे हमारा फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से रिटर्न होता है, वो वैल्यू हमारी उस फंक्शन के लिए हो जाती है, वो उसका स्कोप, हमारा फंक्शन जैसे कंप्लीट हुआ, द वैल्यू इज, द स्कोप ऑफ द वैल्यू इज आल्सो टर्मिनेट। मीन्स उस पर्टिकुलर फंक्शन के बाद, जिस फंक्शन मैंने कॉल किया, उसके बाद हम उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। कॉल्ड बाई वैल्यू, इट मीन्स दैट वी पास ओनली वैल्यू इनटू द फंक्शन। मीन्स क्या करें, हम वैल्यू क्या करें, फंक्शन में पास करें। इट कॉल बाय वैल्यू चेंज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मेन फंक्शन। मीन्स हम जब वैल्यू पास कर रहे थे तो वैल्यू जो भी चेंजेस करते हैं पर्टिकुलर वैल्यू में, तो चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इनटू द कॉलिंग फंक्शन। मीन्स जिस पर्टिकुलर फंक्शन से मैंने उसको कॉल किया है, उस पर्टिकुलर फंक्शन पे उस वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं होता। नाउ जस्ट द एग्जांपल, वाइड बाई वैल्यू। ओके, int a इक्वल टू a प्लस 10। ओके, int x is equal to 40 by value x and x is value change is 50, but there is no reflection into the main value because of that कि हमारे पास ये वैल्यू क्या करें, पास बाय एज ए वैल्यू की है। नाउ कॉल बाय रेफरेंस, इट मीन्स वी पास द एड्रेस और लोकेशन इनटू द फंक्शन। मीन्स क्या करें, हम जब कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू पास कर रहे थे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या करते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं, ना कि रदर देन द वैल्यू ऑफ द एड्रेस। ओके, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मीन्स इन द कॉल बाय रेफरेंस चेंज द रिफ्लेक्ट इनटू द कॉलिंग फंक्शन और मेन फंक्शन। जिस फंक्शन से मैंने इसको कॉल किया, उस पर्टिकुलर फंक्शन पे हमारे जो भी चेंजेस है, वो चेंजेस हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा इनटू द मेन फंक्शन। ओके, नाउ int main int x इक्वल टू 60 बाय रेफरेंस %x। ओके, एंड देन रिटर्न 0। नाउ पासिंग एरे इनटू फंक्शन। नाउ अब हम क्या करें, किसी भी एरे, किसी भी फंक्शन में क्या कर सकते हैं हम, वी कैन इजीली पास द एरे। ओके, नाउ int ऐड नंबर, ऐड 5 नंबर एंड देन एरे। ओके, मैंने यहाँ पर एरे को पास किया, एंड एरे में कैसे इसको मैं पास करूँगा, वेरिएबल स्टोर किया, स्टोर करने के बाद देन वी जस्ट पास द नेम ऑफ द एरे, ऐड नंबर एंड देन एरे। द एरे ऑफ नेम ऑफ द एरे इज पॉइंटेड टू द मेमोरी लोकेशन। ओके, एंड स्टोर इनटू द 5 नंबर्स। Here is the 5 number and this is the sum of the array। मीन्स हमने इस प्रोग्राम को ऐड किया और हमारे वैल्यू को क्या कर देगा, सम कर देगा। नाउ पासिंग रेफरेंस टू फंक्शन, नाउ वी कैन जस्ट पास द रेफरेंस ऑफ द एनी वेरिएबल टू द फंक्शन। सेवरल फंक्शन लेट अस कॉल द f, g and h where tx is variable of the same type and length। ओके, tx वेरिएबल ऑफ सेम टाइप का, उसकी वैल्यू। ओनली डिफरेंस बिटवीन gf इज दैट गिवन द फंक्शन वैल्यू। मीन्स क्या करना है, g और f
एफ जी एच जो भी डिफरेंस है वो हमारा केवल फंक्शन वैल्यू पे डिफरेंस है, ना कि उसके प्रोसीजर पे. नाउ आई वांट टू पास एफ जी एच बाय रेफरेंस सो दैट अनदर फंक्शन कैन मैनिपुलेट देम विदाउट द नीड टू रीराइट द फंक्शन फॉर एफ जी एंड एच. ओके, मीन्स क्या कर सकते हैं, हम इसको पास करेंगे एज ए रेफरेंस वेरिएबल. हम रेफरेंस से पास करेंगे तो कोई भी फंक्शन इसको ईजिली क्या कर सकता है, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है विदाउट द रीराइटिंग ऑफ द फंक्शन. वाइड मैंने फंक्शन एंड देन टी एंड एक्स. ओके, मीन्स अब मैं क्या करना, जी एच एफ जी एच को मैंने एज ए आर्गूमेंट मैंने क्या किया, पास किया मैंने फंक्शन के अंदर. ओके, इट इज़ पॉसिबल टू पास द फंक्शन और फंक्शन हैंडल बाय द रेफरेंस इन द सी प्लस. मीन्स क्या कर सकते हैं कि हम इजीली पास कर सकते हैं इनटू द सी प्लस में, कि हमारे पास फंक्शन भी पास हो और फंक्शन के साथ साथ उसकी वैल्यू को भी इजीली पास कर सकते हैं, इजीली हैंड ओवर कर सकते हैं. आई हैव द फॉलोइंग सिचुएशन, सेवरल फंक्शन, लेट अस कॉल देम एफ टी एक्स, जी टी एक्स एंड एच टी एक्स, वेयर टी एंड एक्स आर द वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप एंड लेंथ. ओके, द ओनली बिटवीन एफ जी एच दे आर डिफरेंट इन द फंक्शन वैल्यू. फंक्शन वैल्यू के थ्रू क्या करें, हमारे ये डिफरेंस. नाउ ओके, इट इज पॉसिबल एंड आई एम थिंकिंग टू मच इन टर्म ऑफ द मैटलैब. मीन्स कह रहे हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन के ड्यूरेशन क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे जो भी हमारे एफ जी एच की वैल्यू, और उसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल में चेंज करेंगे. नाउ डू इट योर सेल्फ, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. ओके, एंड सेकंड वन इज द अलाउ चेंजेस in the value of variable but do not allow change in the value of the variable, but is the call by value or call by reference or call by value. Just this is the some conceptual part of the program. Now we are just going to see the practical implementation of the system. Okay, now अब मैं देखते हैं कि हमारे पास कैसे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, इजीली इम्प्लीमेंट. नाउ iostream.h ओके, वाइड मेन. अब इससे पहले क्या करें, वी जस्ट डिक्लेयर द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन. नेम ऑफ द फंक्शन इज सम एंड द आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ द फंक्शन इज int and int. okay, it takes two argument. We just declare int a comma b comma c. Now just output the value. Enter any two number. मैंने क्या किया, दो नंबर को एंटर किया. एंटर करने के बाद फर्दर सीन ए सीन बी एंड देन नाउ सी इज इक्वल टू सम ए कामा बी. ओके, मैंने वेरिएबल के यहाँ पर कॉल किया एंड देन सी आउट सम ऑफ ए एंड बी एच सी. ओके, नाउ इसके थ्रू मैंने वेरिएबल कॉल किया एंड हियर we just define the int x comma y int y. Here we just return x plus y. x plus यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरिएबल को मैंने एरे डिफाइन किया. दिस फर्स्ट लाइन
is called prototype of function. This line called function calling, and this line फंक्शन डिफिनीशन. ओके, ये मैंने क्या किया, फंक्शन को मैंने कॉल किया और फंक्शन के थ्रू मैंने क्या किया, इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या किया, मैंने चेंज किया. नाउ कंपाइल द प्रोग्राम एंड successfully run the program. Value 23 and 45 and the sum of the a and b is the 68 now. ओके, ये मैंने क्या किया, फंक्शन मैंने क्रिएट किया, सिंपल मैंने प्रोटोटाइप बनाया, फिर फंक्शन के बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया. कॉल करने के बाद फर्दर मेरा फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन मैंने डेफिनेशन लिखी. नाउ अब हम क्या करते हैं, हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन को पास करते हैं. अभी जो मैंने एज ए आर्गूमेंट पास किया, दिस आर्गूमेंट नोन एज द कॉल बाय value argument. Okay, now I will just see the difference between the call by value and call by reference. Just declare the program, just rename pointer and pointer. We just call the function ampersand okay, cout value before swipe. Just value before swipe, the value of swipe is there. Okay, and cout अब मैंने सम को कॉल किया, कॉल करने के बाद cout a and b and the sum is variable of the call and the value copy and paste. Okay, and value after swipe. After swipe is the a and b. Now what exactly done in swipe. Okay, okay, here just rename the function swipe pointer x pointer y x is equal to pointer y and pointer y is equal to a. Okay, return 0. Now we just compile the program and just F9 use the program. First value is 20 and 34, 12 and 34, and after the swap 34 and 12. Okay, this is the basic mechanism of the
स्वैप फंक्शन कि हम स्वैप फंक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने किया बिफोर द स्वैप 12 and 13 value of a and b, and after the swap value of a and b is the 34 and 12. Okay, but this is called in the call by reference manner कि मैंने क्या किया, रेफरेंस को कॉल किया और उस पर्टिकुलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू कॉल करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, चेंज। कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो हमारा ये जो भी चेंज आ रहा है वो चेंज हमारा नहीं आता, बिकॉज ऑफ दैट कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का स्कोप क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया था। ओके, थैंक यू।